Hello everyone, welcome back to my channel. Once again, I intend everybody is doing very good and I'm also doing good. So in this video, I'm going to share the very recent incident that happened with me. I got scammed and almost I have lost 30,000 approx amount in that scam. So the purpose of making this video is to spread awareness and to make you alert that you do not fall into this kind of fraudulent and scam activities. Although today's generations are very smart, but still the innocent people like me, or bewakoof people I can say like me, still after knowing everything also still got into the fraudulent and scam activities. So just I'm sharing this incident so that awareness thoda sa spread ho. Okay, so I'm going to tell exactly what happened with me. It was very recent, just 29th July को ही हुआ है and मैं पहले ही वीडियो बनाना चाहती थी बट आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम ड्यू टू माई हेक्टिक स्केड्यूल. सो मेरा लीव स्टार्ट हो गया है, आई एम ऑन लीव नाउ. सो आई थॉट first I have to make this video. So let's quickly jump into the video what exactly happened with me. Okay, so बात ये था कि my sister purchased a shirt from Myntra and which she don't like when it delivered to her. She don't like, so वो ऐसे ही wardrobe में पड़ा हुआ था. So उस दिन मेरा off था and I was arranging my wardrobe and उसी में आई सॉ दिस शर्ट. एज यू कैन सी ये एकदम न्यू पड़ा हुआ है. इट इज स्टिल पैक, टैग भी लगा हुआ है. इट इज एग्जैक्टली न्यू. दिस इज द शर्ट. सो इसका मेन प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस 1600 समथिंग है. इसका टैग लगा हुआ है. सो 1600 के अराउंड इसका प्राइस है. सो मेरे दिमाग में आया बिकॉज आई नेवर डिड दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिफोर. बट मैंने सुना था कि ऐसे रीसेल करने के लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है, OLX एंड ऑल. सो आई डाउनलोडेड OLX ऐप. ऑल्दो इट वॉज ऑन माई मोबाइल बट आई डिलीटेड. So I downloaded OLX app and I uploaded this shirt picture with every angle. And because it's का original price 1600 something है, but I posted it with 999, that is 1000. So although it is brand new, it is not used by anyone, but still because I am reselling it, so मैंने इसका price 1000 में रख दिया and I uploaded. सो द पर्पस, मेरा पर्पस यही था कि अगर सेल करके अर्न होगा. दिस वॉज माई इंटेंशन ओनली. सो आफ्टर आई अपलोडेड आई स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस रिगार्डिंग माई एडवर्टिजमेंट. सो आई कॉन्टैक्टेड फ्यू ऑफ देम. सो पहले जिससे मैंने कॉन्टैक्ट किया, मतलब आई क्लिक्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मैसेज. सो उन्होंने मुझसे बोला कि ही इज़ रेडी टू टेक दिस, ही इज़ रेडी टू परचेज दिस शर्ट on the amount that I have posted. So he told me to share my contact number so that he will further discuss how can he pay me online or through cash or anything else. So I shared my contact number and immediately I received a call from him. So he was saying that वो एक shop owner है and he is going to purchase this shirt for his shop. I was okay, it's okay. So the mode of payment will be he is going to pay me online through his machine. So उससे पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आपने क्या कभी मशीन कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट किया है पहले. तो मैंने थोड़ा बोला, I mean I was not sure what he was asking, so I said no because machine payment is something like that. I never heard about it. It's okay. तो मैंने नहीं बोला. उसी बीच I received another call and his voice was so desperate. He was saying कि मैडम आप ये शर्ट जो आपने पोस्ट किया है, एडवर्टीजमेंट दिया है, आप ये मुझे दे दो, मैं 1500 में लेने को तैयार हूँ. I mean मैंने तो इतना प्राइस रखा भी नहीं था. My price was only 1000, 999, that is 1000, and he was ready to take this in 1500. So I was a little shocked that why, what's the reason. एनीवे बट मैंने उनको बोला कि मेरा ऑलरेडी किसी से डील हो चुका है. सो आई एम गोइंग टू गिव दिस शर्ट टू हिम. तो उन्होंने बोला कौन है, आप नंबर बताओ, आप मुझे बोलो, मैं उनसे बात करूँगा, ये वो. मीन्स ही वॉज सो डेस्परेट. तो जब मैं उनसे बात करते करते ही जब मैंने दोनों का व्हाट्सएप में DP देखा, द DP इज शोइंग सेम प्रोफाइल पिक्चर ऑफ सेम पर्सन.
आई विल ट्राई टू अटैच एवरीथिंग, ऑल द स्क्रीन शॉट्स। ट्राई नहीं, आई विल अटैच ओनली। सो आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर सेम इंसान का शो हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि जिससे मेरी पहले बात हुआ है और आपका प्रोफाइल पिक्चर में सेम है। तो उन्होंने बोला शायद वो मेरे भाई होंगे, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो मेरे सामने ही उन्होंने लाउड स्पीकर में बात किया कि मेरी नेहा जी से बात हो रही है, मैं शर्ट ले रहा हूँ। तो दोनों आपस में अग्री हो गए, ठीक है। तो अब मेरा जो मेन वो पर्सन था, सेकंड इंसान, उसका नाम अकॉर्डिंग टू हिम अशोक अग्रवाल है, और उसका जो भाई जो उसका मेरे पास पहले कॉल आया था उनका नाम नवीन कुमार है। आई डोंट नो ये नाम भी करेक्ट है कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन एंड विच वॉज शोइंग इन द व्हाट्सएप, it was showing that the person who called me first named Naveen Kumar, and the brother of him who called me later named Ashok Kumar। और अशोक कुमार नाम के बंदे से ही मेरा पूरा 3-4 घंटा अप्रॉक्सीमेटली दोपहर से लेके पूरा शाम तक मेरा कॉन्वर्सेशन चला है। ओके, तो अब मेरा उनसे बात हो रहा है। अब पेमेंट के लिए जब मैंने पूछा तो उन्होंने फिर वही बोला कि क्या आपने मशीन से पहले पेमेंट रिसीव किया है। आई डोंट नो व्हाट दे वर आस्किंग, ऑफ कोर्स इट्स देयर टैक्टिक्स एंड दे आर प्रोफेशनल ट्रेन, लिटरली आई एम टेलिंग दिस। वो इतने अच्छे एक्टिंग करेंगे, मेरे जैसे लोग तो इजीली मैनिपुलेट हो जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने मेरा बिलीव जीतने के लिए क्या क्या किया, अब ध्यान से सुनना। तो उन्होंने मुझे एक लिंक दिया। उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं पहले आपको 1 रुपीज़ सेंड करता हूँ, आप मुझे बताना आपके पास जा रहा है कि नहीं, जैसे जनरली हम लोग करते हैं। बट जनरली द लीगल एंड जेन्युइन प्रोसेस इज दैट कि आप सच में पेमेंट करते हो। बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मुझे एक लिंक भेजा और मुझे बोला इस लिंक को आप अपने जीपे में पेस्ट करो। मैं भी इतनी बेवकूफ़ हूँ, तो मैंने ऐसा किया। अब पेस्ट करने के बाद इट वॉज शोइंग दैट आई हैव टू पे 1 रुपीज़ टू हिम। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि आई एम सपोज टू रिसीव 1 रुपीज़, बट वाई आई हैव टू पे 1 रुपीज़ टू यू। देन ही वॉज सेइंग कि बिकॉज इट इज़ अ मशीन काइंड ऑफ पेमेंट, वी आर बिजनेस मैन, सो हम मशीन से पेमेंट करते हैं, तो ये आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा। आई वॉज क्वाइट कन्विंस्ड। तो मैंने वही किया जैसा उन्होंने बोला, मैंने कॉपी पेस्ट किया। मेरे यहाँ से 1 रुपये डेबिट हुआ, फिर 1 रुपये उन्होंने मुझे क्रेडिट कर दिया, और मुझे लगा कि 1 रुपये डेबिट होकर वापस क्रेडिट हो गया। बट मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये तो समझना चाहिए था कि जो अमाउंट मेरे से डेबिट हो रहा है वही अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। सो उस टाइम दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। उस टाइम आई वॉज टोटली मैनिपुलेटेड और वश में आ गई थी। आई डोंट नो व्हाट हैपन विथ मी दैट ऑन दैट डे। ये होना था, मुझे एक लेसन लेना था शायद, दैट्स वाई यूनिवर्स ने करवाया मेरे से, सो दैट इन फ्यूचर कुछ बड़ा लॉस होने से अच्छा है ये थोड़ा सा छोटे से ऊपर, छोटा तो नहीं बोलूँगी मैं, बट स्टिल इट वॉज अ बिगेस्ट लेसन फॉर मी इन माई लाइफ। एनीवे, तो 1 रुपीज़ क्रेडिट हो गया मेरा। एकदम विश्वास जीतने के लिए उन्होंने फिर 10 रुपये के साथ ऐसा किया, सेम चीज़ 10 रुपीज़ के साथ। तो मैंने सेम किया, मेरे से डेबिट हुआ, मेरे पास फिर क्रेडिट हो गया। तो अब उन्होंने मेरा पूरा विश्वास जीत लिया। सो नाउ ही वाज सेइंग कि आप अपना पेमेंट इस तरह रिसीव कर लो। फिर उन्होंने एक लिंक भेजा, मैंने कॉपी पेस्ट किया, 1000 मैंने अपने अकाउंट से डेबिट कर दिया। अब मेरे पास 1000 रुपीज़ क्रेडिट नहीं हुआ। मैं उनसे बोल रही हूँ कि नो अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन माई अकाउंट। तो वो इतने अच्छे से बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप चेक करो, क्योंकि मैंने यहाँ से भेज दिया। आप देख सकते हैं, पता नहीं वो क्या फ्रॉड स्क्रीनशॉट्स भी दे रहे थे कि पेड टू नेहा मुखर्जी, टुडे इज़ AI वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड उस तरह के स्कैमर लोग के पास तो सबसे पहले एक्सेस होता है। सो उन्होंने मुझे भेजा फ़ोटो, जो कि फ़ोटो भी रियल नहीं था, बिकॉज कोई भी अमाउंट मेरे पास क्रेडिट नहीं हुआ था। तो मैंने वापस चेक किया, क्योंकि वो इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे थे, बोल रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, आप दोबारा चेक करो, या फिर हो सकता है टाइम आउट हो गया, या फिर बड़ा अमाउंट है इसीलिए एक बार में नहीं हुआ, आप दोबारा करो। तो मैंने बोला दोबारा करूँगी तो मेरे से 2000 रुपीज़ चला जाएगा। तो उन्होंने बोला, वो इतने अच्छे से बोला, अरे बहन आप मुझ पे विश्वास करो, 1 भी रुपया आपसे आपके अकाउंट से नहीं कटेगा, अगर कटेगा तो आप मुझे बोलना, ये वो। फिर गीता, उन्होंने यहाँ तक मेरा विश्वास जीतने के लिए गीता पे गीता की झूठी कसम भी खाई, कि मैं गीता की कसम खाता हूँ, गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, ये वो। अब जहाँ पे ये सब बातें आ जाता है, मेरे तरह के स्पिरिचुअल और
क्योंकि मुझे इतना भी नहीं लगता कि लोग इतने बुरे हो सकते कि उनको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि थोड़ा सा भी मतलब गीता जैसे या किसी पे भी हाथ रखे, गीता कुरान या किसी किसी के नाम पे भी बकवास कर देंगे। मतलब थोड़ा सा भी इंसान है कि नहीं, आई डोंट नो। मतलब गीता का मुंह से नाम ले रहे हैं और ये पाप किए जा रहे हैं। एनीवे, तो इस तरह से फिर मेरा 2000 गया, मैंने वापस किया। फिर क्योंकि मेरा ये 2000 रुपये अभी लॉस हुआ था, तो इसको पाने के लिए फिर इतना मुझे मैनिपुलेट कर रहे कि आप विश्वास, एक लास्ट बार विश्वास कर लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर एक लिंक पे लिंक वो देते गए मुझसे, अमाउंट डेबिट पे डेबिट होते गए। आप देख सकते हैं, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट अटैच करूँगी कितना अमाउंट मेरे से लिया। और इस तरह करते करते अप्रॉक्सीमेटली 30,000 अमाउंट मेरा उस दिन लॉस हुआ। तो मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ, I did not tell this to my father. Although he don't watch my videos, but I did not tell this to my father, or none of my family members also knew about this. Only my sister and my mother knows about this. So अगर कोई भी मेरा ये वीडियो देखेगा तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि मेरे फादर तक ये बात ना पहुँचे, बिकॉज माई फादर इज़ बट नॉट काइंड ऑफ सॉर्टेड पर्सन। सो वो उनको थोड़ा सा इट्स बेटर कि वो ना जाने, बिकॉज ही डोंट वॉच माई वीडियोज। और किसी को बोलना है देन यू कैन टेल, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि किस तरह के लोग होते हैं और किस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं। एनीवे, तो उनका मेरे साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था कि आप क्योंकि मैंने उनको पहले ही लोकेशन भेज दिया था, क्योंकि जब हमारा डील हो रहा था तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे लोकेशन भेजो, मैं अपना आदमी भेजता हूँ आपके वहाँ से ये डिलीवरी लेने के लिए, शर्ट लेने के लिए। तो उनके पास मेरा लोकेशन था, तो वो बोले, लास्ट कॉन्वर्सेशन जो हुआ, मैं यहाँ पे चैट अटैच कर रही हूँ, कि मैं आपके वहाँ पे जाके पूरा कैश देके आपका जितना भी लॉस हुआ है सब क्लियर करने आ रहा हूँ मेरे लोकेशन पे। मैंने वो लास्ट वर्ड भी उनका विश्वास किया। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरे उनके साथ, स्विच ऑफ हो गया। मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ बट स्विच ऑफ हो गया। इसी बीच उनके भाई का मेरे पास कॉल आता है। वो मुझसे पूछते हैं कि आपने किसके साथ डील किया था, आपकी तो पहले मेरे साथ बात हुआ था। आई वाज कि आप मेरे सामने ही आप लोगों के बात हुआ था और अभी आप ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका कितना लॉस हुआ है, आप पूरा स्क्रीनशॉट भेजो। मैं सेम डायलॉग वो भी बोला कि मैं आपकी लोकेशन पे आके कैश में क्लियर करता हूँ। मैंने सारा स्क्रीनशॉट भेजा बट मुझे फिर उस पर विश्वास नहीं हुआ। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा भी हो गया। मम्मी पूछ रही थी कि मम्मी को पता था कि दे आर नॉट गोइंग टू कम, बट स्टिल मुझे 20% या 30% पता नहीं विश्वास क्यों था, कि बिलीव था कि दे विल कम। 70% ऑल्दो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू कम। फिर थोड़ी देर बाद मैंने जब उनके भाई को, क्योंकि उनका जो मेन पर्सन था जिसके साथ मेरा लंबा बात हुआ, अशोक, उनका तो स्विच ऑफ हो गया। उनका भाई का तभी भी स्विच ऑन था। तो मैंने उनसे पूछा कि इज़ देयर एनीवन हु इज़ कमिंग इन माई लोकेशन टू क्लियर ऑल माई कैश एंड क्लियर ऑन माई लॉस, क्लियर ऑन माई अमाउंट्स। ही वाज सेइंग कोई नहीं आ रहा है, ये सब फ्रॉड है बोल के काट दिया। अब मैंने तुरंत कंप्लेन लॉन्च किया सॉरी। तो कंज्यूमर सहायता केंद्र, मैंने पहले तो सर्च किया कि इस तरह का फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो तो कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंज्यूमर सहायता केंद्र में मैंने कंप्लेन किया। वहाँ से फिर मेरे पास कॉल आता है, उनसे पूरी डिटेल में जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने कंप्लेन करने के बाद मेरे पास 2-3 डेज़ के बाद फिर से एक कॉल आता है। देन आई वॉज इन माई फ्लाइट, मैं फ़्लाइट कर रही थी। तो मैंने उस दिन तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, बट उसके नेक्स्ट डे मैंने अटेंड किया कॉल को। और उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि आपने कंप्लेन लॉन्च किया है, ऑल्दो कंप्लेन में मैंने 25,000 का दिखाया है, बट मुझे और ज़्यादा दिखाना चाहिए था। बट एनीवे, मेरे को ये तो उस दिन बहुत ही लगा था, बिकॉज इट वॉज माई हार्ड अर्नड अमाउंट, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं ऐसे बैठे बैठे पैसा नहीं कमाती हूँ, और कोई भी जो लीगली पैसा कमाते हैं मेहनत करने के बाद कमाते हैं। और इस तरह से जो चीट करते हैं, स्कैम करते हैं, दूसरों के मेहनत के पैसे को इस तरह से इलीगली स्कैम करते हैं, आई डोंट नो उन लोगों का कर्मा तो है ही है। बट मुझे पैसों की तो फिक्र, ऑफकोर्स पैसा इज़ ऑल्सो एन एनर्जी, बट पैसा तो मेरे पास आ जाएगा। जो गया है, भगवान की कृपा से मैं अच्छी नौकरी करती हूँ, तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, तो पैसा मेरे पास आ जाएगा।
बट इस तरह का जो चीज़ हो रहा है, मुझे वो लोगों तक पहुंचाना है. सो थ्रू दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड दिस मैसेज, स्प्रेड दिस अवेयरनेस. एनीवे, तो उन्होंने मुझसे पूछा पूरे डिटेल में, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी समझाया कि आप इस तरह की बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं. आप पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, आप इतने सारे, आप एक एयरलाइन क्रू है, आप इतने सारे लोगों को देखते हैं, किस तरह आप इस तरह के स्कैम में फंस सकती है. बट उस दिन वो होना था. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. एक चुटकी में मैंने 30,000 40,000 रुपये गंवा दिया, मेरी मेहनत की कमाई. तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये इसका 3 स्टेजेस होगा, तो अगर आप इस केस को आगे ले जाना चाहती है तो आपको जो जो प्रोसीजर बोला मैंने किया. तो अभी 25 to 30 डेज़ के अंदर मेरे पास मैसेज आया है कि आपका ये रिफ़ंड, मतलब केस रिफ़ंड होने का चांसेस है 93%. बट स्टिल आई डोंट होप कि मुझे पैसा मिलेगा. मिला तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे उन लोगों के खिलाफ एक्शन चाहिए जो इस तरह के स्कैम करते हैं. और उन्होंने मुझे बोला कि ये जो आपने जो भी आपने बताया है इन पर्सन के बारे में, उन्होंने मतलब जो खोज किया था, मतलब सर्च किया था, इट्स नॉट आई एम द ओनली विक्टिम. आई न्यू अबाउट दिस कि मैं अकेले विक्टिम नहीं हूँ. ये इस तरह के फेक काफ़ी प्रोफाइल है उन लोगों का OLX में, और वो लोग इस तरह करते रहते हैं लोगों के साथ. और ये उड़ीसा के किसी सिटी से दे बिलोंग. तो एग्जैक्टली मैं सिटी का नाम भूल गई, बट उड़ीसा के किसी सिटी से दिस फ्रॉड पीपल बिलोंग. एंड उनका जो नाम है वो भी रियल है कि नहीं, आई डोंट नो. सो या, this was all about this video which happened with me all of a sudden. And इस तरह के स्कैम और भी, मतलब स्कैम तो भरे पड़े हैं आजकल. लोगों का लोग कुछ काम नहीं है, उन लोगों के पास जॉब नहीं करना है, उन लोगों को इलीगल वे से लोगों का मेहनत की पैसे खींचने हैं. सो प्लीज़ 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 बी वेरी अलर्ट एंड बी वेरी सेफ एंड बी वेरी मच अवेयर. डू नॉट, इस तरह का कोई भी आपको बोलता है कि आपको पेमेंट करके रिसीव करना है, पहली बात तो इस तरह के स्कैम में बिल्कुल मत फंसना. सेकेंड टाइप ऑफ स्कैम विच इज़ गोइंग ऑन इज़ अबाउट द जॉब, कि आपको जॉब पाने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपको जॉब मिलेगा. स्पेशली ये एयरलाइन जॉब के लिए, एयरलाइन जॉब के लिए बहुत होता है. तो पहली बात मैं बता देती हूँ, एयरलाइन जॉब पाने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है. और अगर आपसे कोई इस तरह का कर रहा है, दे आर नॉट रियल, दे आर स्कैम. बिकॉज एयरलाइन के पास, एयरलाइन इतनी चिंदी नहीं है. एयरलाइन कंपनी अगर कोई एक रन कर रहा है तो दे हैव सफिशिएंट फंड. उनको इन लोगों से 2-3 हज़ार या 5-10 हज़ार लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा. हाँ, एयरलाइन आपसे डिमांड ड्राफ्ट जो मांगती है कैबिन क्रू ट्रेनिंग के लिए, वो डिमांड ड्राफ्ट है. इस तरह का कोई लिंक अगर कोई भेजे या कोई स्कैनर भेजे, बिल्कुल नहीं. तो वो डिमांड ड्राफ्ट है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए लेते हैं, सो दैट आप इन बिटवीन अगर छोड़ दिए तो एयरलाइन जो आपके पीछे इतना खर्चा करता है उसको वो लॉस बियर करने के लिए आपको एक सर्टेन पीरियड अगर आप सर्विस करते हो तो आपको वो पैसा विथ इंटरेस्ट वापस भी मिल जाता है. बट वो सिलेक्शन होने के बाद आप जब ऑफिस में ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, आपके पास ऑफर लेटर होगा, उसके बाद वो प्रोसीजर होता है, वो भी DD में, नॉट इन कैश, नॉट इन एनी UPI ट्रांजेक्शन और लिंक्स. सो इस तरह के केसेस अगर हो और मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीख मिले, देन प्लीज़ 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 इस वीडियो को स्प्रेड करो. आई जनरली डोंट से in any of my video to share the videos and all, but this video must need to share. So I hope you learned a lesson from this video, and be very safe. And thank you so much for being with me and watching my videos and spreading all your love to me. I will see you in my next video. Till then, take care of yourself. Bye bye. Jai Hind, and be very 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 alert from fraud and scam peoples. Thank you so much. Bye.